Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. In this session, we are going to talk about unit number 2, BFM Module A, which is liberalized remittance scheme and other remittance facilities for individual. Okay. So I hope you all are doing well. So सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा. आशा करते हैं सब कुछ ठीक ठाक होगा. ठीक है. तो मॉड्यूल ए जिसको हमने पिछले सेशन में आपका कवर अप किया था. ठीक है. आई होप आप सबने मॉड्यूल ए देखा होगा. बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. खासकर मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी आपका. ठीक है. सो मॉड्यूल ए यूनिट 1 वी ऑलरेडी डन विद दिस पर्टिकुलर यूनिट व्हिच इज एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस. सो आज का जो टॉपिक है दैट इज एलआरएस, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम एंड अदर रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर individuals. Okay, so I'm going to cover these particular units one by one, and we will have long session here, like almost 1 hour session for one unit. पहला unit आपका जो 1.5 hour के अंदर गया था. ठीक है. So in two parts. So today we will summarize this entire unit in one video. So ऐसे ही I'll come up with the number of sessions. सारे units आपका one by one cover up करेंगे. ठीक है. Then I'll come up with the MCQs and case studies. देन मॉड्यूल वाइज प्रैक्टिस एंड आपका फाइनल मैराथन्स. राइट. तो आपके एग्जामिनेशन से पहले आई मेक श्योर कि 15 दिन पहले आपको बिल्कुल एकदम रेडी बना देंगे. ठीक है. सो CIB इज ऑल अबाउट फाउंडेशंस. हाउ लाइक इफ यू नो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वेरी वेल, सो यू विल डेफिनेटली सी अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन. तो हमें हर इस चीज के लिए आपका प्रिपेयर रहना. राइट. चलो तो लेट्स हैव अ लुक अबाउट द यूनिट 2, LRS and other remittance facilities course content. So here we have basic introduction to LRS, capital account transaction and current account transactions. Then we have key sections of FEMA for LRS. Then we have permissible and non-permissible activities under LRS scheme, operational guidelines, remittance under LRS for current account transactions, tax collection at source. Then we have capital account transaction under LRS, reporting requirements under LRS for authorized dealers bank. Okay, so this is the course content, and I'm going to cover the entire all the subtopics, and content will be 100% match with your Macmillan book. Okay, तो आपके जो मैकमिलन का कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम आपका इन सभी टॉपिक्स को समझने वाले. So I hope everybody is aware about LRS scheme, liberalized remittance scheme. This scheme was introduced by RBI on 4th of February 2004 with an initial limit of $25,000 per financial year. Right now it is $250,000 per financial year. ठीक है. तो अभी like this scheme is generally dedicated to individuals including minors. They can use this scheme for foreign remittances, for capital account transaction as well as current account transaction. So being an individual, let's say for travel purpose, for education, for investment purpose, or for medical purposes, so we can use this particular scheme. And this scheme is subject matter of TCS deduction, tax collection at source, and the threshold limit is 7 lakh rupees. Right. तो पहले थोड़ा सा फाउंडेशन को पढ़ते हैं. सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट एरिया है दैट इज कि आपके 3 शेड्यूल में आपका ये स्कीम बनी है. शेड्यूल 1 विच इज नॉन परमिसिबल एरियाज, शेड्यूल 2 आपका विच इज वेयर वी हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्रीज, एंड शेड्यूल 3 इज परमिसिबल एरियाज, जहां से आपको बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है. सो LRS, liberalized remittance scheme, is a foreign exchange policy initiative introduced by RBI, Reserve Bank of India, on 4th of February 2004. It intended to simplify and streamline the process of remitting funds abroad for the individuals only, right? So this scheme is not for corporate houses, HUA, partnership firm and others. Okay? So as a step toward the simplification and liberalization of foreign exchange facilities, and with a view to provide suitable opportunities to resident individuals in the light of the changing scenario, the LRS for resident individuals was introduced on 4th of February 2004. Okay. So individual, they can use this particular scheme for any type of capital as well as current account transaction which are permissible under this particular one, okay, and which are subject matter of FEMA regulation also. So initially the limit was $25,000 per financial year. Now it is 2,50,000 per financial year.
पर पेन कार्ड, बेसिकली पेन कार्ड पे आपका जनरली चलता है, ठीक है। एंड whenever we apply for any kind of foreign remittances being an individual, so we have to connect with authorized dealers and we have to fill a form that is known as फॉर्म A2। तो फॉर्म A2 आपका जो फिल किया जाता है जिसमें पर्पज कोड आपका विच विल डिफाइन, ठीक है, और सही नहीं जो डिक्लेरेशन आपका होता है वो आपका बताता है कि इतना जो परमिसिबल लिमिट है उसके अंदर ये रेमिटेंसेस आपका हो रही होती है, ठीक है। सो वी विल कम टू फॉर्म A2 ऑल्सो। सो द स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस ऑन दिस एंड इनिशियल लिमिट वॉज दिस, ठीक है। So the scheme facilitate individuals to remit funds abroad for permitted current and capital account transaction or a combination of both, ठीक है। तो जो ये आपका लिमिट है दैट इज 2.50 लाख USD per financial year. This is per financial year, and resident individuals they can use this particular scheme for current account. That means current accounts that include आपका जैसे टूर एंड ट्रेवल, मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन एंड अदर्स। कैपिटल अकाउंट दैट जनरली involve the investment in other areas, other countries and others, ठीक है। So scheme is available for resident individuals including minors also, corporate partnership firms that you have trust NRIs are not allowed under this particular scheme, ठीक है। तो ये क्लियरली आपका जो यहाँ पे मेंशन किया गया, ठीक है। So what are the permissible areas? So as per schedule 3, ठीक है, so this is part of your schedule 3 of LRS scheme, ठीक है। So these are the permissible areas where you can use this particular scheme। जैसे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, so private visit to any country except Nepal and Bhutan, gift or donation purposes, going abroad for employment, immigration, maintenance of close relative abroad, travel for business or attending a conference, expense in connection with medical treatment abroad, studies abroad. So these all are basically करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अंडर द LRS स्कीम। ये सारे करंट अकाउंट के अंदर आपका आते हैं, ठीक है। अब नाउ व्हाट इज दिस कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, तो पहले इसको समझ लेते हैं, देन वील कम टू द schedule 1 and 2 also। schedule 1 is all about non permissible areas, schedule 2 is where we have like prior that particular remittances we have to take prior approval from the different ministries or government departments, ठीक है। so capital account and current account, capital account basically investment से related होता है, that is generally long term in nature। current account is करंट अकाउंट का मतलब यहाँ पे क्या है, आपका जो पर्सनल से रिलेटेड जो चीजें आपकी होती है, ठीक है। सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन as per section 2 subsection E of FEMA Act 1999, capital account means a transaction which alter asset liabilities including contingent liabilities outside of India or assets and liabilities in India of a person resident outside India। So this is the आपका legal meaning as per the section 2 subsection E of FEMA Act 1999। करंट अकाउंट की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सो अगेन सेक्शन 2 सबसेक्शन J ऑफ फेमा एक्ट 1999, करंट अकाउंट मींस a transaction other than a capital account transaction and include payment connected to trade, travels, मेडिकल और फैमिली मेंटेनेंस अब्रॉड, ठीक है। तो जिसमें आपका करंट अकाउंट आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो स्कीम है ये डिटेल में है, करंट अकाउंट के लिए पूरा अलग से और कैपिटल अकाउंट्स के लिए अलग से। तो पहले हम लोग करंट अकाउंट के बारे में बात करेंगे, देन विल कम टू द कैपिटल अकाउंट ऑल्सो, ठीक है। So, non-permissible remittances under LRS, which are defined under the Schedule 1 of LRS scheme for under करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो ये हम लोग करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस की आपका यहाँ पे बात करेंगे, पहले हम लोग करंट अकाउंट को पढ़ेंगे, देन विल कम टू द कैपिटल अकाउंट ऑल्सो, ठीक है। सो नॉन परमिसिबल एरियाज बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। नॉन परमिसिबल और दूसरा आपका जो है दैट इज सेमी परमिसिबल वेयर यू हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। मैक्सिमम टाइम जो एग्जाम क्वेश्चन है वो वहां से पूछा गया है, ठीक है। So remittances, like first आपका remittances for any purpose specifically prohibited under Schedule 1, like purchase of lottery tickets, sweepstake, prescribed magazines, or any item restricted under Schedule 2 of the Foreign Exchange Management Act, ट्रांजेक्शन रूल 2000। तो इनके अंदर आपका जो भी प्रोहिबिटेड एरियाज है, जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए गए। इसके अलावा remittances from India for margin or margin call to
टू ओवरसीज एक्सचेंज और ओवरसीज काउंटर पार्टी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। सो मार्जिन कहाँ पे यूज होता है? डेरिवेटिव्स के अंदर, ठीक है। सो वी यूज मार्जिन इन डेरिवेटिव्स। सो दैट मीन्स इसके थ्रू आप फॉरेन एक्सचेंज के जो फॉरेन कंट्रीज के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दोज पर्टिकुलर एक्सचेंजेस, ठीक है। मार्जिन इज बेसिकली एन इनिशियल अमाउंट विच इज पेड बाय द बायर ऑफ डेरिवेटिव्स टू ओन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये से यहाँ पे तो ना तो आप M2M मेंटेन करने के लिए और ना ही उसमें आपका एंटर करने के लिए इस स्कीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेमिटेंसेस फॉर पर्पस ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशूड बाय इंडियन कंपनीज इन ओवरसीज सेकेंडरी मार्केट ऑल्सो, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो अगर जैसे किसी इंडियन कंपनी के द्वारा फॉरेन में आपका कोई बॉन्ड इशू किया गया है, तो उस बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए यू कैन नॉट रैमिट मनी थ्रू दिस पर्टिकुलर स्कीम, आप इस स्कीम के थ्रू आपका वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। रेमिटेंसेस फॉर ट्रेडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज अब्रॉड, तो ये जैसे हमने आपका जो दूसरा पॉइंट था उसके साथ, कैपिटल अकाउंट रेमिटेंसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू अ कंट्री आइडेंटिफाइज बाय द FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज एंड टेरिटरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो FATF के द्वारा अगर किसी को आपका नॉन कोऑपरेटिव कंट्री आपका डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, सो वहां पे आप यू कैन नॉट यूज दिस स्कीम फॉर कैपिटल अकाउंट रेमिटेंसेस, राइट। इसके अलावा रेमिटेंसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू दोज इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज identifies as posing significant risk to committing act of terrorism as advised separately by the Reserve Bank of India, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे कोई भी संगठन या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो टेररिज्म में आपका आता है, ठीक है, या वो आपका मोस्ट लिस्टेड उस वो एजेंसी आपका उसको आइडेंटिफाई किया गया, उसकी लिस्ट आपका दैट इज गिवन बाय RBI, ठीक है। सो उनके लिए भी आप करंट अकाउंट या सॉरी LRS स्कीम के तहत आपका बीइंग एन इंडिविजुअल यू कैन नॉट रेमिट मनी अब्रॉड, राइट। सो दीज आर द एरियाज। अब दूसरे, पहला तो आ गया शेड्यूल 1 विच इज नॉन परमिसिबल एरिया, जहां पे कट्टर ना है आपका। अब आता है दूसरा, ये एरियाज हैं जनरली गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन हो उनके लिए बनाया गया है सेमी अप्रूवल, ठीक है, जहां पे बिफोर रेमिटिंग मनी यू हैव टू टेक अ प्रायर अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। सो शेड्यूल 2 एज यू कैन सी हियर, शेड्यूल 2, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बिलीव मी, ठीक है। सो रेमिटेंसेस परमिसिबल सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज। यहाँ पे ये पॉइंटर्स हैं, आपके मैकमिलन बुक के हैं, पिछले भी आपके मैकमिलन बुक के ही थे, तो आप इनको आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। पहला, रेमिटेंस टुवर्ड कल्चरल टूर, ठीक है। सो जहां पे अप्रूवल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। तो अगर कोई कल्चरल टूर के लिए आपका रेमिटेंसेस हो रहे हैं, सो वी हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर अंडर HRD मिनिस्ट्री, राइट। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड और PSUs, ठीक है, अगर इनके द्वारा आपका वहां पे एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है, सो दे हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। रेमिटेंसेस टुवर्ड फ्रेड ऑफ वेसल्स चार्टेड बाय PSUs, ठीक है, जो आपके वेसल्स आपके चलते हैं ना दस, उनके लिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू ओसीन ट्रांसपोर्ट ऑन CIF basis, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, PSUs और मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, रेमिटेंसेस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर्स बाय TV चैनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी, स्पॉन्सर्ड sponsorship of sports activities abroad by a person other than international, national और state bodies, ठीक है, state level bodies जैसे होते हैं ना फेडरेशंस आपके होते हैं, उनके अलावा अगर आप किसी स्पोर्ट्स को आपका फॉरेन में स्पॉन्सर करने के लिए पैसा ट्रांसफर करें एंड वेयर अमाउंट इज मोर देन $1 lakh, सो यू हैव टू टेक आपका जैसे यहाँ पे क्लियरली लिखा वेयर द अमाउंट इन्वॉल्व एक्सेस टू $1 lakh, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जहां पे आपको प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी। दिस वाज द क्वेश्चन इन नवंबर 2023 एग्जामिनेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंटर्स आपका, आप इनको अच्छे से ध्यान रखें और एग्जामिनेशंस के अंदर बिलीव मी गाइस दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस आल्सो वी विल प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज एरियाज, तो आप इनको याद रख पाएंगे, ठीक है। These are the permissible areas
which we already discussed, ठीक है। So schedule 3 आपका जहां पे क्या था, permissible areas था, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। So remittance of individual resident individual permissible under delegated power of authority, authorized dealers आपका, ठीक है। So that means if you want to remit money through LRS, so you have to connect ऑथराइज डीलर्स जो आपके नॉर्मल बैंक हैं वो सब, ठीक है, जिनको लाइसेंसिंग आरबीआई के द्वारा होते, कल हमने समझा था कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, फिर चौथा हमारे पास था एफएफएमसी, फुल फ्लेज मनी चेंजर्स। अब यहाँ पे whenever you will approach authorized dealer, they'll ask you to fill a form that is known as form A2. We will come to that one. Then they'll ask you to fill the declaration, then they'll certify that particular one, ठीक है। तो प्रोसेस पे आएंगे। पहले private visit to any country other than Nepal and Bhutan, gift or donations, going abroad for employment, आपका immigration, maintenance of close relatives abroad, travel for business by a resident individual, complying as attendant to a patient going abroad, इसके अलावा expense in connection with the medical treatment abroad, studies abroad, purchase of objective of art subject to foreign trade policy, other like remittances toward health insurance and others. Okay, so these are the permissible areas under current account transactions for individuals under your LRS scheme. Okay, understood? तो ये आपका LRS स्कीम के 3 पार्ट, और अभी तक का जितना भी पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों फेज आपका, ठीक है, along with the limit and other things about the LRS scheme. Now ऑपरेशनल गाइडलाइंस, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें ऑपरेशनल गाइडलाइंस की, फॉरेक्स मार्केट इन इंडिया इट इज गवर्न बाय आरबीआई, एंड आरबीआई गवर्न दिस पर्टिकुलर मार्केट थ्रू फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसके ऊपर हमने बहुत बार आपका चर्चा की हुई है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द रूट, आप कैसे, लेट्स से बीइंग एन इंडिविजुअल, इफ यू हैव टू रेमिट मनी अब्रॉड, आपको फॉरेन करेंसीज बाय करने हैं फॉर ट्रेवल पर्पस, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यू हैव टू अप्रोच एनी ऑथराइज डीलर बैंक, जिनको आरबीआई के द्वारा परमिशन दिया गया है, ऑथराइज, once you'll approach to them, they'll ask you to fill a form. That form is known as फॉर्म A2, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फॉर्म A2। तो जहां पे आपका पेन नंबर इज मस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट they'll ask you for the purpose code, ठीक है। पर्पज कोड को याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, फॉर रिपोर्टिंग पर्पजेस ऑफ ऑथराइज डीलर्स वी डू हैव अ पर्पज कोड, जैसे एजुकेशन के लिए अलग, टूर एंड ट्रेवल के लिए अलग, मेडिकल के लिए अलग, ऐसा आपका, ठीक है। देन आफ्टर फिलिंग दैट पर्टिकुलर फॉर्म, they'll ask you for a declaration form, ठीक है। सो यू हैव टू डिक्लेयर थिंग्स कि ये जो सोर्स ऑफ मनी है जो मैं रेमिट कर रहा हूँ, ये ऑथेंटिक सोर्स है, एंड आपका विद इन द लिमिट है, लिमिट मींस 2,50,000 यूएस डॉलर, उससे कम का आपका हुआ है। देन दे विल इशू अ सर्टिफिकेट, इन सब के बाद दे विल इशू अ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो वो आपका ऑथराइज डीलर्स आपको सर्टिफाइड करेगा एंड दे विल हेल्प यू इन रेमिटेंसेस। तो ये पूरा जर्नी जो आपको देखने के लिए मिलेगा। So the Foreign Exchange Management Act state that LRS is available to all resident, including minors. The eligible citizen must have an bank account and a valid permanent account number, PAN जिसको हम लोग बोलते हैं, and a passport. They can use the remitted amount for educational, business या जो भी permissible areas, ठीक है। So first, what will be the process, ठीक है। तो you have to select a branch which is part of authorized dealers, ठीक है। Then make sure carry your PAN card. Then we have to follow the AML and KYC guidelines. Then we have to fill out a form which is known as Form A2 to purchase foreign currency, right? So, last but not least, bank are prohibited from providing any credit to a resident under LRS scheme. अब जैसे आप ऑथराइज डीलर के पास गए फॉर मेडिकल पर्पज या फॉर ट्रेवल, आपने बोला कि आप हमें लोन भी दो, सो इट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द आरबीआई, दे कैन नॉट फाइनेंस दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है। तो ये आपका आरबीआई के द्वारा क्लियरली मना किया गया। तो दिस इज अ सैंपल ऑफ योर फॉर्म A2, ये आपका फॉर्म A2 है, ठीक है। तो फॉर्म A2 जैसे अगर आप इसको देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे कुछ चीजें, फॉर्म A2 टू बी फिल्ड बाय द एप्लीकेंट, ठीक है। जैसे आपका इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या रहेंगे, आपका रेजिडेंट, उसका नाम, ठीक है, पैन नंबर, इसके अलावा एड्रेस, देन आपका ऑथराइज ब्रांच एंड अदर्स, ठीक है। सो इसके अलावा यहाँ पे हाँ 10 पर्पज कोड, ठीक है। सो दिस इज फिल्ड बाय दी, बेसिकली आपका ऑथराइज डीलर्स विल हेल्प यू आउट कि यहाँ पे क्या होगा, किस चीज के लिए आपका ये किया जा रहा है, ठीक है। सो द आरबीआई
The RBI has existing rule for foreign transaction. If you want to make a transaction, you must follow the rules established by Reserve Bank of India. According to RBI, you can remit 2,50,000 US dollar per financial year. Earlier, PAN card were not required for the abroad money transfer up to 25,000 or equal, but this law was changed in April 2018 आपका, ठीक है, जहां पे इसको आपका मैंडेट कर दिया गया, ठीक है. सो डॉक्यूमेंटेशन, व्हाट विल बी द डॉक्यूमेंटेशन आपका, ठीक है. सो जैसे आपका फॉर ओवरसीज एजुकेशन, मतलब डॉक्यूमेंटेशन आपको कॉमन दिखेंगे, तो ओनली डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स इज योर पेन नंबर, ठीक है. सो जो आपको हर उसमें, जैसे एजुकेशन पर्पज के लिए पासपोर्ट है आपका, इंडियन वोटर आईडी इन अदर्स, पैन कार्ड आपका है, यूनिवर्सिटी प्रूफ है, ठीक है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, सपोर्ट ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड. फॉर बिजनेस पर्पज, कंपनी कॉर्पोरेशन टू प्रूफ कंपनी पैन का नंबर, अ लेटर ऑन कंपनीज ओवरहेड, जीएसटी सर्टिफिकेशन, वीजा टिकट्स इन अदर्स. फॉर प्राइवेट विजिट, आधार कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, कंफर्म एयरलाइन टिकट विद अ डिपार्चर डेट विद इन 60 days, पैन कार्ड कॉपी, वीजा कॉपी, ठीक है. मेडिकल ट्रीटमेंट आपका, सो मेडिकल पर्पस, लेटर फ्रॉम अब्रॉड हॉस्पिटल, इंडियन पासपोर्ट, पेन कॉपी, वीजा, ठीक है. फॉर टूर आपका दिस. तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स करिकुलम, ठीक है. आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नहीं पूछेगा, बट हाँ, अगर हम इस स्कीम को पढ़ रहे हैं तो अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि आपके लिए ये कहीं ना कहीं, कभी आप जैसे अब्रॉड जाते हैं फॉर टूर एंड ट्रेवल पर्पज और फॉर एनी अदर पर्पसेस, तो आपको इसके बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. या फिर हम लोग बैंकर होते हैं, तो हमें कोई भी आके बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल कर देता है ना, कि आप बताओ भैया ये कैसे होगा, ठीक है, तो यू कैन हेल्प देम, ठीक है, इस तरीके से आप इनको हेल्प कर सकते हैं. तो सेम चीजें आपका यहाँ पे हैं, ठीक है. सो सारे आई विल शेयर दिस पीडीएफ आल्सो, सो यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वन, राइट. चलो, अब हमने फॉर्म A2 आपका समझा, दिस इज योर फॉर्म A2. जस्ट आफ्टर फॉर्म A2 यू हैव टू फिल द डिक्लेरेशन फॉर्म. यू मींस एप्लीकेंट, ओके. तो जो भी आपका कर, अब अगर आप डिक्लेरेशन फॉर्म को देखते हैं, अंडर फेमा एक्ट 1999, आई, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, hereby declare that the total amount of foreign exchange purchased from or remitted through all sources in India during the financial year, including this application, is within the overall limit under the LRS स्कीम प्रिस्क्राइब बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, 2.5 लाख से ज्यादा का नहीं किया मैंने, ये आपको बताना, ठीक है. सो जहां पे अदर्स आपका, जैसे डेट इन अदर्स और आपका सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, तो ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म. जस्ट आफ्टर दिस आपका जो ऑथराइज्ड डीलर्स है, दे विल वेरीफाई दिस एंड देन दे विल इशू यू सर्टिफिकेट अलोंग विद द मनी, ठीक है. सो आपका पेमेंट के लिए आ जाएंगे सर्टिफिकेट बाय द ऑथराइज्ड डीलर्स. This is certified that the remittance is not being made by or to ineligible entities, and that the remittance is conformity with the instruction issued by the Reserve Bank of India from time under the scheme. तो जहाँ पे नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ ऑथराइज्ड डीलर, सिग्नेचर, डेट एंड प्लेस आपका, ठीक है. तो इस तरीके से करंट अकाउंट रेमिटेंसेस आपका जो कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है. अब जैसे मैंने आपको एक चीज बोली कि करंट अकाउंट रेमिटेंसेस आर सब्जेक्ट मैटर टू टीसीएस डिडक्शन, नॉट टीडीएस, टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ठीक है. तो अब आते हैं टीसीएस के बारे में. आई होप आप लोगों ने टीसीएस को पहले कभी पढ़ा होगा, सुना होगा. एक मैंने छोटा सा वीडियो भी किया था. रोज, हर रोज सुबह 7 बजे मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो करता हूँ, 10 मिनट शो के नाम से, ठीक है, जिसमें आपकी जो बैंकिंग प्रोफेशन है उसके अराउंड आपका एक अवेयरनेस काइंड ऑफ, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. तो आप लोग उनको भी देखा करें अगर टाइम मिले तो, ठीक है. सो टीसीएस आपका, ठीक है, सो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स. टीसीएस जनरली आपका अंडर सेक्शन 206, ये कहां से है आपका, ठीक है, सेक्शन 206C, ठीक, सबसेक्शन सी आपका किसका, कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट, जहां पे आपका टीसीएस के बारे में बात की गई है, ठीक है. जनरली यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया आपका गुड्स को, ठीक है, कौन कौन से गुड्स आपका जिनमें टीसीएस आपका एप्लीकेबल होगा. इट इज कलेक्टेड बाय द सेलर, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स आपका, सोर्स इज सेलर एंड seller need to pay this particular one to the government, file the TCS on quarterly basis. अगर वो नहीं करते हैं और अगर नहीं कलेक्ट करते हैं, ठीक है, so there is a पेनल्टी ऑफ 1% पर मंथ आपका, ठीक है. एक में 1% पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे क्या लगती है, पेनल्टी आपका जो इम्पोज की जाएगी सेलर के ऊपर, ठीक है. अब अगर हम लोग गुड्स की बात करें, जैसे आपका एल्कोहल इन कंजम्पशन नेचर,
इसके अलावा जैसे जो लग्जरी कार्स हैं आपके जिनकी वैल्यू 10 लाख से ऊपर है, उनके ऊपर आपका 1% का टीसीएस रहता है। इसके अलावा जैसे टिम्बर वुड आपका है, उसके ऊपर 2.5% का टीसीएस रहता है एज पर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ये तो एक नॉर्मल। अब आती है एलआरएस स्कीम में, ठीक है। सो टीसीएस इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन एलआरएस स्कीम, ठीक है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड थ्रेशोल्ड लिमिट इज, अगर हम लोग थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करें, ठीक है, सो दैट इज हाउ मच, ₹7 लाख, ठीक है। कितना है आपका? 7 लाख रुपीज। थ्री डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेबिलिटी होगी। पहला आपका फॉर एजुकेशन अब्रॉड, ठीक है, एजुकेशन आपका इट इज रेट इज 0.50%, ठीक है। और फॉर मेडिकल पर्पज, ठीक है, मेडिकल पर्पज इट इज 5%, ठीक है। एंड अदर्स इट बिकम, आपका अदर्स कितना हो गया अभी ये? 20%, ठीक है। 20% विद इफेक्टिव फ्रॉम, कब से आपका? विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023, ठीक है। अर्लियर इट वाज आपका 5% ओनली, ठीक है, 5% ही हुआ करता था ये। अब यहाँ पे इन तीनों को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। एजुकेशन पर्पज वेयर द सोर्स ऑफ मनी इज आपका लोन फ्रॉम अ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जैसे कोई एजुकेशन पर्पज के लिए जा रहा है और उसने उसके लिए जो लोन लिया है वो किसी डोमेस्टिक बैंक से लिया, जो सोर्स ऑफ मनी है दैट इज लोन फ्रॉम सम डोमेस्टिक बैंक, तो दिस विल बी 0.50%। मेडिकल ट्रीटमेंट 5% और आपका अदर आपका 20%। नाउ हाउ यू विल सी केसेस बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर, यहां से केस स्टडी आपको मिलेगी कैसे। सपोज दैट देयर इज अ पर्सन मिस्टर ए हु remitted मनी फॉर मेडिकल पर्पस, ठीक है। सपोज दैट इसने आपका मेडिकल पर्पस के लिए, इसका पर्पस कोड क्या है? मेडिकल है, ठीक है। सो सपोज दैट इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है, जून के अंदर इसने आपका रेमिट किया 5 लाख रुपए, ठीक है। इन केस आपका देन अगस्त के अंदर इसने आपका 2000 फाइनेंशियल ईयर हम लोग पढ़े 2024-25 करंट फाइनेंशियल ईयर के बात करते हैं, ठीक है। अगस्त में इसने आपका किया 7 लाख एंड दिसंबर के अंदर इसने किया सपोज दैट 10 लाख, ठीक है। So now examiner will ask you to calculate TCS on this on Mr. A, कितना TCS उसको पे करना होगा और कब कब पे करना होगा, ठीक है। So how you will calculate this particular one? देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग उसकी बात करते हैं, ठीक है। So यहाँ पे TCS will be nil, ठीक है। यहाँ पे TCS क्या होगा आपका? nil होगा। Why it is nil? nil होने के पीछे रीजन क्या है आपका? जीरो होने के पीछे रीजन क्या है? बिकॉज थ्रेशोल्ड लिमिट इज 7 लाख, ठीक है। 7 लाख आपके इसकी क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट है, ठीक है। अब यहाँ पे 7 लाख है, ठीक है। सो 5 लाख उसने ऑलरेडी यूज कर लिया था जून में, अब बचा कितना? 2 लाख। तो यहाँ पे 5 लाख का एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। 5 लाख का 5% ये आपका टीसीएस होगा, ठीक है। दूसरा आपका दिसंबर के अंदर पूरे के पूरे 10 लाख का एट द रेट ऑफ 5% आपका। वाई 5%? बिकॉज इन केस ऑफ मेडिकल इट इज हाउ मच? 5%, ठीक है। तो अब आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि इसको टोटल टीसीएस आपका, इसका जो टोटल टीसीएस है वो कितना है, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन तो थोड़ा सा आप लोग भी कर लेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो ये आपका टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, मिस्टर ए हु रेमिटेड मनी फॉर मेडिकल पर्पस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25। सो in first tranche he remitted 5 lakh rupees, this is rupees, 5 lakh rupees, it is not dollar, don't get confused, ठीक है। So 5 lakh rupees, so आपका the TCS obligations or liability is zero in this case. August 24 he remitted 7 lakh rupees, so now the TCS obligation will be 7 lakh minus 2 lakh. Why 2 lakh? Because threshold limit is 7 lakh, right? So 5 lakh 5%. In December 10 lakh, so 10 lakh 5%. So this way the total of these three is generally will that will be the tax liability on Mr. A. अब वहीं पे अगर हम लोग बात करें, suppose that there is one another person, suppose that Mr. X who remitted 20 lakh rupees, 20 lakh rupees for education purpose where the amount is taken from some bank in India. तो इसके ऊपर टीसीएस कितना होगा? हाउ विल कैलकुलेट दिस? सो 20 लाख माइनस 7 लाख, सो दैट इज 13 लाख। सो 13 लाख का एट द रेट 0.50%, सो दिस विल बी टीसीएस ऑन Mr. X, ठीक है। Other cases we have this particular. I hope you got this particular one clearly. अगर कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स कमेंट्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। समझ में आया सबको? अगर आया तो ये सवाल का जवाब दे देना,
और इस सवाल का जवाब दे देना, आई विल फील हैप्पी, ठीक है। अच्छा लगेगा मुझे कि आप लोग सीरियसली, जितना सीरियसली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतने सीरियसली आप इनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अब थोड़ा सा आपकी बुक को देख लेते हैं। बुक में थोड़ा सा अपडेट नहीं है, मे बी उन्होंने 2024 का एडिशन अभी रिलीज किया नहीं, क्योंकि और मेरे पास जो बुक है वो आपका जो आपका लेटेस्ट एडिशन था 23 वाला वही है। तो अगर कोई चेंजेस होगा मे, क्योंकि जो आपका चेंज हुआ ना 5% वाला, अर्लियर इट वाज 5%, तो ये अक्टूबर से आपका इफेक्टिव हुआ, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, ठीक है। Finance Act 2020 has a new insertion in Income Tax Act on tax collection at source at 5% on the foreign remittances under LRS with effect from 1st October 2020। तो 1 अक्टूबर 2020 से ये लागू हुआ था, 1 अक्टूबर से ही आपका जो 5 to 20 भी किया गया। The threshold for TCS is 7 lakh rupees. So you have to remember this threshold limit. It is in rupees for an entire financial year, and TCS is applicable only on remittance amount that exceed the annual cap of 7 lakh rupees. जैसे हमने केस समझा था, ठीक है। In case of non availability of PAN और आधार, it is 10% डबल हो जाएगा हर किसी केस में। TCS also applicable for transaction involving transfer domestic rupee account to NRO accounts अंडर एलआरएस। अब ये डोमेस्टिक रुपी अकाउंट मतलब एनआरओ अकाउंट क्या होता है, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट्स। अगले सेशन में जब हम लोग करस्पॉन्डेंट बैंकिंग पढ़ेंगे तो वहां पे एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआर ये तीनों पढ़ेंगे। एनआरओ में जनरली क्या होता है आपका कि एक फॉरेनर मतलब एनआरआई है जिसका इंडिया से जो इनकम है, रेंटल इनकम या अदर्स, वो उसमें रखता है इंडियन करेंसी के अंदर। तो अगर आप उसमें भी ट्रांसफर करोगे तो इट विल बी एप्लीकेबल, राइट। एनआरई आपका एनआरई फॉरेन करेंसी अकाउंट है ना, इंडियन करेंसी अकाउंट है बट फॉरेन अर्निंग से। एफसीएनआर आपका इट इज अ काइंड ऑफ एफडी इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। एसएनआरआर अकाउंट्स व्हिच इज यूज्ड फॉर द बिजनेस ट्रांजैक्शन। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अगले क्लास में ये सब समझेंगे, ठीक है। रेमिटेंसेस अंडर एलआरएस टुवर्ड स्टडीज अब्रॉड, the source of where the source of fund is education loan will be 0.50%, ठीक है। so applicable over the threshold of 7 lakh। तो आप जैसे कस्टमर ए आपका मेक अ रेमिटेंस ऑफ 6,50,000, सो आपका नो टैक्स विल बी कलेक्टेड आपको 4 अप्रैल को। मेक रेमिटेंस ऑफ 9,50,000 ऑन 5th मई, तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखो यहाँ पे 50,000 बचा था, तो 9 लाख का 5%, ठीक है। सो 9 लाख का 5%, सो 9 लाख का 5% आपका उसको क्या करना होगा, टीसीएस पे करना होगा, ठीक है। क्यों 9 लाख, बिकॉज यहाँ पे 6,50,000, 50,000 की लिमिट उसकी बची हुई थी, ठीक है। मेक रेमिटेंस ऑफ 40,000, तो यहाँ पे पूरे 40,000 का आपका 5%। समझ लो कि ये मेडिकल का केस है, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट का, क्योंकि अभी ये चेंज आपका हुआ है। जैसे आपका कस्टमर बी मेक अ रेमिटेंस ऑफ 20 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर, एक ही ट्रांजेक्शन किया 20 लाख का, अगेन समझ लो मेडिकल का केस है, 13 लाख पे आपका 5%, ठीक है। कस्टमर सी मेक अ रेमिटेंस ऑफ 10,000 फॉर परस्यूइंग एजुकेशन लोन थ्रू ऑब्टेन फ्रॉम द इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और योर बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 10 लाख तो माइनस 7 लाख, 3 लाख का 0.50%, ठीक है। सो 0.50% ऑफ 3 लाख, जो इसको आपको क्या देना पड़ेगा, टीसीएस आपका देना पड़ेगा। अंडरस्टूड। तो टीसीएस एक ऐसा यूनिट है यहां से जहां से आपको केस स्टडी आपको देखने के लिए मिल सकता है आने वाले एग्जामिनेशंस के अंदर। इसके अलावा एलआरएस की जो क्वेश्चंस होंगे दे विल बी अप्लाइड बेस आपका, ठीक है। चलो, तो जैसे हाँ यहाँ पे क्लियरली आपका मैंने आपके लिए पॉइंटर भी रखा है, ठीक है। ऑल ओवरसीज रेमिटेंसेस एक्सेप्ट those for medical or educational purpose exceeding threshold of 7 lakh rupees will be a subject matter of 20% TCS deduction, and this become effective from 1st October 2023। जुलाई के अंदर this was a plan, ठीक है, बजट के दौरान आपका इसमें बात हुआ था, ठीक है। जुलाई में आपका इसको करने की बात की जा रही थी बट इट गेट इफेक्टेड, और ये जो आपका लागू हुआ था कब से, यहाँ से, ठीक है। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। अभी तक हमने जितने भी सारे ट्रांजेक्शन पढ़े हैं दे ऑल बिलोंग्स टू करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट्स जहां पे आपका 3 एरियाज में हमने इस स्कीम को समझा। शेड्यूल 1 नॉन परमिसिबल एरियाज, शेड्यूल 2 आपका सेमी परमिसिबल विद गवर्नमेंट अप्रूवल्स, एंड थर्ड वन इज आपका परमिसिबल एरियाज, ठीक है। तो जहां पे बहुत सारे एरियाज जहां पे आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोसेस फॉर्मेट या अदर्स वो सब हमने समझा। नाउ वी हैव कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस, ओके। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, लाइक इट इज फॉर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट पर्पसेस एंड ऑल, राइट। सो रेमिटेंसेस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने आईएफएससी स्टार्ट किया, ठीक है। जो फॉरेन
अगर आप लोगों को ये बात पता होगा, आईएफएससी जहाँ पे अगर बीइंग एन इंडिविजुअल और अगर इंडियन की तरह अगर मैं यहाँ पे अकाउंट ओपन करता हूँ, सो दैट अकाउंट विल बी इन फॉरेन करेंसी अकाउंट, ठीक है। सारी ट्रांजेक्शन आपका किस में होती है, फॉरेन करेंसी के अंदर होती है, और उस अकाउंट के थ्रू आई कैन ट्रेड और आई कैन इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसीज या फॉरेन जो भी आपके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। तो ये आपका आईएफएससी के अंदर कोई भी मतलब वहां पे ट्रेड जो होती है, ट्रांजेक्शन जो होते हैं, दैट इज अदर देन रूपी, रूपी के अलावा सारे अकाउंट्स में आपके होते हैं, ठीक है। उस प्लेटफॉर्म को इसीलिए बनाया गया, आईएफएससी एक्ट पास किया गया 2021 के अंदर, कि जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनका एक इंटीग्रेटेड वर्जन, सो जिससे आपके जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो काफी अच्छे ढंग से और काफी स्मूथ तरीके से हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर पाए, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आठवां जो यूनिट नंबर 8 है वो आपका आईएफएससी के ऊपर, आईबीयूज आप लोगों ने सुना होगा, आईएफएससी बैंकिंग यूनिट, जो बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। सो विल कम टू दैट पर्टिकुलर वन आल्सो. So with a view to deepen in the financial market, International Financial Service Center (IFSC) GIFT City, Gandhinagar, Gujarat, an opportunity is provided to the resident individual to diversify their portfolio, wherein residents are permitted to make remittances under LRS to IFSC, subject to the overall limit permissible under the extent guidelines, which is 2,50,000 US dollar. The remittance shall be made only for making investments in IFSC securities other than those issued by entities, companies resident in India, ठीक है। तो ये इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है बल्कि आउटसाइड के लिए। ओपनिंग ऑफ एन नॉन इंटरेस्ट बियरिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट, यहाँ पे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था ना कि आपको एक फॉरेन करेंसी अकाउंट आपका ओपन करना होता है, विच इज नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पे। इन आईएफएससी परमिटेड फॉर मेकिंग द अबव परमिसिबल इन्वेस्टमेंट अंडर द एलआरएस, any fund lying ideal in the account for a period up to 15 days from the date of credited into the account shall be immediately repatriated to domestic INR accounts of the investor, ठीक है। तो जैसे अगर आप किसी फॉरेन कंपनी के उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, आपने रेमिटेंस किया, एंड इफ यू नॉट यूज दैट पर्टिकुलर वन विद इन 15 वर्किंग डेज, सो दैट अमाउंट विल गेट बैक। और रीपेट्रिएशन, जैसे क्या होता है ना, रीपेट्रिएशन और पेट्रिएशन और रीपेट्रिएशन, रीपेट्रिएशन का मतलब यहाँ पे जनरली क्या है आपका, कि आप जो आपकी डोमेस्टिक करेंसी उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपका दो बेसिस पे होते हैं, एक पेट्रिएशन बेसिस और दूसरा रीपेट्रिएशन, नॉन रीपेट्रिएशन और आपका रीपेट्रिएशन, ठीक है। रीपेट्रिएशन में जहां पे वो उस पैसे को बाहर ले जा सकते हैं, नॉन रीपेट्रिएशन में जहां पे नहीं ले जा सकते। तो दिस इज द केस ऑफ रीपेट्रिएटेड आपका, जहां पे ये चीज रहेगी। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। No domestic transactions are permissible to settled with other resident through these FCA foreign currency account held in IFSC, ठीक है। तो इनके थ्रू आप कोई भी आपका डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Authorized dealer bank allowing such remittances on behalf of resident individuals shall comply with all other terms and conditions including reporting requirement under the LRS transaction. तो root will be authorized dealers only, ठीक है। So opening of foreign currency account abroad, अब ये तो हमने IFSC एक आपका एक प्लेटफॉर्म दिया, इसके अलावा भी हमारे पास एक और डायरेक्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट आप किसी दूसरे कंट्री में भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अकाउंट अब्रॉड, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड इन द फॉर्म ऑफ जैसे एक्विजिशन इन होल्डिंग ऑफ शेयर्स बोथ लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज, acquisition of debt instrument like bonds and others, acquisition of qualification of shares of an overseas company for holding the post of directors, ठीक है। तो ये आपका एरियाज हैं किसके लिए, मतलब आईएफएससी फॉरेन करेंसी अकाउंट के अलावा यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर वन आल्सो, बट ओनली थिंग इज यू हैव टू अप्रोच थ्रू द ऑथराइज्ड डीलर्स। कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे अगर आप घर खरीद रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या आपका किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स बॉन्ड्स खरीद रहे हैं या आप किसी ओवरसीज कंपनी के डायरेक्टर बने जिसके लिए आपको कुछ शेयर्स एक्वायर करने पड़ेंगे, तो उसके रेमिटेंस के लिए आप ये कर रहे होते, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी टुवर्ड प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर्ड और इन ल्यू ऑफ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, ठीक है। यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल
unrated debt securities promissory note, setting up joint ventures and wholly owned subsidiaries outside India, where the joint ventures and wholly owned subsidiary is engaged in bona fide business activities. Bona fide business activities means permissible business activities. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किसी नॉन परमिसिबल के लिए भी कर देंगे. ठीक है, अब हम लोग जब आएंगे ना, देर इज अ यूनिट कॉल्ड, जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आपका, तो वहाँ पे एक एरिया जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज ओडीआईस. ठीक है, आई होप आप में से किसी ने सुना जरूर होगा इसके बारे में. ठीक है, ओडीआई, so overseas direct investment, so where we will talk about these particular thing in detail. ठीक है, जैसे एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वैसे ही उसका अपोजिट है आपका ओडीआईस, वेयर बीइंग एन इंडिविजुअल्स वी आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड कंपनीज. हम लोग वहां पे जॉइंट वेंचर्स या आपका होली ओन सब्सिडरीज स्टार्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो दैट इज द वन. तो ये दोबारा से आएगा और बहुत डिटेल में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा ध्यान रखें. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इन इंडिया, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कैन बी ईदर इन लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड कंपनीज और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, subject to a maximum overall limit for purposes put together, that is 2,50,000 US dollar. ठीक है, no credit facility to be extended to a facilitate capital account transaction, जैसे वहां पे भी आपका था. ठीक है, opening of bank account abroad permitted for facilitating and putting through the investment transactions. Opening of bank account abroad permitted for facilitating and putting through the investment, जैसे मतलब उसके लिए जो foreign transaction हो रहे हैं, for that one you can open account. Remittances can be consolidated in respect of family members, subject to individual family members complying with the term and condition, and all family members are co-owners co-partners of overseas investment. अब देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दिमाग में आना भी चाहिए. जैसे एक फैमिली में 3 लोग हैं जो आपका एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं अब्रॉड में, या अगर आपको 2.5 लाख से ज्यादा करना है तो आप क्या करें, अपने भाई को, सिस्टर को, या जो भी अदर रिलेटिव है उनके साथ आप ये कर सकते हैं. क्योंकि ये जो लिमिट है 2,50,000, दैट इज पर पेन कार्ड, आपका पर पेन नंबर के ऊपर आपका लिमिट है. तो राम, श्याम और गीता, 3 भाई बहन आपका, जिन्होंने आपका दे कैन रैम इट अप टू कितना आपका कितना हो जाएगा, 5-7.5 लाख US डॉलर इन अ फाइनेंशियल ईयर. तो इस तरीके से जो ये पॉइंट आपका बोलता है. अंडरस्टूड? ठीक है, समझ में आया सबको, चमका ना. चलो आगे बढ़ लेते हैं. डॉक्यूमेंटेशंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी सेम फॉर्म A2 फेमा डिक्लेरेशन. ठीक है, तो पहले आपको यू हैव टू अप्रोच ऑथराइज्ड डीलर्स, यू हैव टू फिल फॉर्म A2 एंड डिक्लेरेशन, देन दे विल सर्टिफाई. ठीक है, सो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म A2 अलाउ. इसके अलावा सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन फॉर इंडिविजुअल फॉर अमाउंट अप टू 25,000 सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑथराइज्ड डीलर्स, डिक्लेरेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स, परमानेंट अकाउंट नंबर, फॉर्म ओडीआई. अब यहां पर आएगा फॉर्म ओडीआई इन केस ऑफ होल्स, आपका जब आप जॉइंट वेंचर्स या होली ऑन सब्सिडरीज खोल रहे होंगे. ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करने वाले हैं आने वाले समय में. सो फॉर्म, जैसे यहाँ फॉर्म A2 फॉर आपका नॉर्मल पर्पसेस, बट अगर आप अब्रॉड में जॉइंट वेंचर, जैसे अगर आप शेयर्स खरीद रहे हैं अदर्स, यहाँ से चल जाएगा. बट अगर आप आपका होली ऑन सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर्स में जा रहे हैं, देन यू हैव टू फिल द फॉर्म ओडीआई. Part 1 of Form ODI to be summoned within 30 days of making the first remittances. ठीक है, तो आपका उस 30 days का मतलब है कि पार्ट 1 जहां पे आपको यूजेस आपका डिस्क्लोज करना होता है कि हमने इस पर्पस के लिए किया था और इस तरीके से हमने उसको यहाँ पे यूज किया. कोई भी किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं, अगर चेंजेस हैं सो यू हैव टू डिस्क्लोज दैट पर्टिकुलर वन. ठीक है, so designated authorized dealer bank to report to RBI in form ODI part 1 and part 2 within 30 days from the date of making the remittance by the resident individual. Resident individual should submit share certificate or any other document as evidence within 6 months from the date of making remittance. आपने बोला कि मैं शेयर्स के लिए शेयर खरीदने के लिए कर रहा हूँ, तो एक्चुअल में आपने किया नहीं किया, उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा. ठीक है, post investment changes alteration in shareholdings patterns to be reported to designated authorized dealers within 30 days from the date of such change. ठीक है, अगर कोई भी चेंजेस होते हैं, जैसे हमने शेयर्स के लिए किया था, हमने बोला कि हम 1 लाख शेयर खरीदना चाह रहे हैं, हमने नहीं खरीदे, 50,000 ही खरीदे और कुछ और खरीद रहे हैं. अगर ऐसा कोई भी अल्टरेशन है, सो यू हैव टू report to your authorized dealer within 30 days of the from the date of that particular change itself, right? अगला
Reporting requirements under LRS. I guess this is the last part of your this particular unit. ठीक है? So reporting requirements कहाँ से होगा? Authorized dealers. Authorized dealers will report to RBI. You have to report to authorized dealers because that is the route. So earlier reporting of LRS by authorized dealer bank was based on declaration made by the resident individuals, and no independent reliable source of verifications were available. So, however, with effective from April 2018, a daily reporting system by authorized dealer bank of transactions undertaken by the resident individual has been put in the place by the RBI. तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले क्या था, जैसे ऑथराइज डीलर के पास हम गए, हमने डिक्लेरेशन फॉर्म फिल किया, उसने सर्टिफाई कर दिया, ठीक है, तो इतना ही आपका सिस्टम था। अब आरबीआई क्या कर रहा है, ऑथराइज डीलर्स के ऊपर भी चेक रख रहा है, ठीक है, उसने प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन बनाया, उसने बोला कि आपके वहां पे दिन भर में जितने भी रेमिटेंसेस हो रहे हैं, सो अगले वर्किंग डे के अंदर मुझे उन सबका रिपोर्ट चाहिए। अगर जीरो हो रहा है, यू हैव टू रिपोर्ट एज अ जीरो, ठीक है, जिससे कोई भी मिसकम्युनिकेशन आपका ना हो, ठीक है। So authorized dealers are required to upload daily transaction wise information undertaken by them under LRS. The reporting of daily transaction are to be reported on XBRL platform by close of the next working day. तो आज की जो ट्रांजेक्शन है वो आपको अगले उस पे, देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल XBRL, मैं इसका फुल फॉर्म भूल गया हूँ अभी, ठीक है, आप अगर याद है तो कमेंट्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। सो XBRL आपका प्लेटफॉर्म विच इज डेवलप्ड बाय आरबीआई, जहाँ पे आपको ये सारी चीजें अपलोड करनी होंगी, ठीक है। सो नील, देखो यहाँ पे ये चीज क्लियरली लिखा भी है, नील रिपोर्ट टू बी अपलोडेड if there are no transaction on the particular business day, ठीक है, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो भी आप रिपोर्ट करो, जिससे आप बाद में ना बोलो कि गलती से कुछ ऐसा हुआ। XBRL इज समथिंग लाइक एक शीट टाइप की जो होती है, ठीक है, आई जस्ट मिस दैट नेम। The data on such daily reporting made available to all the authorized dealers, ठीक है, तो जिससे कोई भी मिसकम्युनिकेशन या अदर्स इनके चांसेस ना हो, दिस इज इट। तो ये आपका यूनिट नंबर 2 विच इज LRS, liberalized remittance scheme and other remittance facilities for individual। तो पहले सबसे पहले काम है आपका, कैसा लगा सेशन जरूर बताएं कमेंट्स के अंदर। और इसके अलावा इफ यू हैव सम सजेशन प्लीज डू शेयर दोज पर्टिकुलर सजेशंस आल्सो, वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दोज एरियाज, ठीक है। एंड वन लाइक एक चीज में आपका जैसे देयर आर सम कैंडिडेट्स हु आर मोर कंफर्टेबल इन हिंदी लैंग्वेज, or there are some who are more comfortable in English language. So I'm trying to make a win-win situation. I hope you both जो भी आपका जिस भी कैटेगरी से हैं, सो सबको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। सो डू शेयर योर सजेशन फीडबैक्स, सो आने वाले समय टाइम में हम लोग उनके ऊपर आपका काम कर पाए, ठीक है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब दिस वन, राइट। सो गाइज आज के लिए इतना ही करते हैं, आई सी यू टुमारो। सो कल हम लोग बात करने वाले हैं करस्पॉन्डेंट बैंकिंग के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर, ये जितने भी एरियाज आपके जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो उन सबको समझेंगे, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, यू कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑल्सो, एंड इफ यू हैव सम क्वेरीज यू कैन शेयर दोज पर्टिकुलर क्वेरीज, आपका डायरेक्टली इस ग्रुप में अलाउ है सब कुछ, ठीक है, तो आप अपनी क्वेरीज भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड लाइक फर्स्ट इन नेक्स्ट 30 to 35 days आई विल कम अप विद नंबर ऑफ फाउंडेशन सेशन। इतना आपने अगर पढ़ लिया ना, सो दिस इज लाइक कि आप आधे रेडी हैं इस एग्जाम के लिए, क्योंकि ये एग्जाम आपका फंडामेंटल बेस है, कॉन्सेप्ट बेस आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से पढ़िए पहले, फिर आपका एमसीक्यूज एंड अदर्स, जो एक जर्नी होता है 4-5 साल में, मैंने इतना समझ लिया इस एग्जाम को कि कैसे क्रैक किया जा सकता है, ठीक है। दैट हैक वी नो एंड वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड टू यू आल्सो, ओके। So this is it from my side, guys. Thank you for watching this session. Bye bye, take care all, have a nice day, thank you.